بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں بھاٹی چوک انڈر پاس منصوبہ تاخیر۔ منصوبہ تیسرے ماہ میں داخل ہو گیا، 1 ماہ میں تکمیل کے دعووں کا منصوبہ طویل ہونے لگا۔ بری پلاننگ کے باعث کئی مرتبہ انڈر پاس کی پائلنگ کا بور بیٹھا، جس سے نقصان ہوا۔ بھاٹی چوک انڈر پاس منصوبہ تاخیر کے ساتھ تیسرے ماہ میں داخل ہو گیا، 1 ماہ میں تکمیل کے دعووں کا منصوبہ طوالت پکڑنے لگا۔ عید الفطر پر منصوبہ ایوارڈ کیا گیا، مشینری موو کی گئی، لیکن کام شروع نہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 1 ماہ کا بے بنیاد دعویٰ کر کے 3 ماہ کے التوا پر پردہ ڈال دیا گیا۔ پری پلاننگ کے باعث کئی مرتبہ انڈر پاس کی پائلنگ کا بور بیٹھا، جس سے نقصان ہوا۔ انڈر پاس کے صرف بیرل کی کھدائی مکمل کر کے 80% کام مکمل کرنے کا حقائق کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے۔ انڈر پاس کے والز، چھت، بیڈ اور بیشتر بنیادی کام ہونا باقی۔ بھاٹی سانحہ کے بعد وزیر اعلیٰ نے کانٹریکٹرز کو مین چوک کے کام کرنے سے روک دیا تھا۔ ٹیبا حکام نے کانٹریکٹر تبدیل کرنے کی بجائے نیا انڈر پاس کا کام پھر بری شہرت والے ٹھیکیدار کو دے دیا۔ اس سے قبل موجودہ التوا کے ذمہ دار کانٹریکٹر کمپنی نے بند روڈ پر کام ادھورا چھوڑا۔ پائن ایونیو انڈر پاس کا کام کئی ماہ سے التوا میں ڈال رکھا ہے۔ سائٹ پر 2 قیمتی جانے جانے کے باوجود کمپنی کے حفاظتی اقدامات حال ناکافی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ کانٹریکٹر کی ناقص حکمت عملی اور بری پلاننگ کے باعث محرم الحرام اور داتا صاحب کے عرس پر زائرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے مختلف محکموں کی جانب سے اربوں روپے مالیت کے منصوبے تجویز۔ بجٹ میں صحت کے شعبے کی 24 نئی ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بجٹ میں جاری اخراجات کے لیے 727 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز بھی تیار کر لی گئی۔ پنجاب حکومت کے مالی سال 2026-27 کے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختلف محکموں کی جانب سے اربوں روپے مالیت کے منصوبے تجویز کر دیے گئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 186 ارب 92 کروڑ روپے، ہائر ایجوکیشن نے 136 ارب 27 کروڑ، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے 148 ارب 22 کروڑ، محکمہ صحت و آبادی نے 82 ارب 14 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبے تجویز کیے ہیں۔ محکمہ زراعت نے 98 ارب، محکمہ مواصلات و تعمیرات نے 122 ارب 27 کروڑ، لائف سٹاک نے 35 ارب 85 کروڑ روپے، اوورسیز پاکستانیز نے 32 ارب سے زائد، پولیس نے 28 ارب 71 کروڑ روپے، محکمہ سیاحت نے 25 ارب 22 کروڑ روپے اور محکمہ داخلہ نے 24 ارب 59 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ پنجاب حکومت نے بجٹ میں صحت کے شعبے کی 24 نئی ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جن کا مجموعی حجم 81 ارب 24 کروڑ 90 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی نئی اسکیموں کے لیے 26 ارب 45 کروڑ 97 لاکھ مختص کرنے کے، جبکہ 53 ارب 79 کروڑ 50 لاکھ روپے آئندہ برسوں کے لیے فارورڈ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ میو ہسپتال کے تاریخی بلاکس کی تعمیر نو اور او پی ڈی کی اپ گریڈیشن کے لیے 1.5 ارب، چلڈرن ہسپتال میں جدید فارمیسی سٹور کی تعمیر کے لیے 49 کروڑ اور پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے 55 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ بجٹ میں جاری اخراجات کے لیے 727 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز بھی تیار کی گئی ہے۔ بجٹ تجاویز کے مطابق آپریٹنگ اخراجات کو بڑھا کر 258.2 ارب روپے کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ سبسڈیز کے لیے 100 ارب روپے، سود کی ادائیگیوں کے لیے 71.7 ارب، فزیکل اثاثوں کی مد میں 16.8 ارب اور مرمت و بحالی کے کاموں کے لیے 64 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دیگر اخراجات اور بلاک ایلوکیشن کے لیے 236.3 ارب رکھنے کی سفارش سامنے آئی ہے۔ اب یہاں پر بات کریں بازاروں کے اوقات کار میں توسیع۔ دکانیں، مارکیٹیں، مالز رات 9 بجے بند ہوں گی۔ شادی ہالز، مارکیٹس، کمرشل ایونٹس 10 بجے اور ریسٹورنٹس، ہوٹلز 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز، آئی ٹی کمپنیز، تندور، فیول اسٹیشنز پر اوقات کار کی پابندی نہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بازاروں کے اوقات کار میں توسیع کر دی گئی۔ دکانیں، مارکیٹیں، مالز رات 9 بجے بند ہوں گی، جبکہ شادی ہالز، مارکیٹس، کمرشل ایونٹس 10 بجے اور ریسٹورنٹس، ہوٹلز 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز، آئی ٹی کمپنیز، تندور، فیول اسٹیشنز پر اوقات کار کی پابندی نہیں ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے 14 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ محمد ثاقب بٹ ڈی ایس پی سیکیورٹی 1 داتا دربار تعینات، طارق میمو ڈی ایس پی ڈولفن اسکواڈ کینٹ لاہور تعینات کیا گیا، ساجد علی کو ڈی ایس پی شکرگڑھ ناروال تعینات کیا گیا ہے، نصر اللہ چٹھا ایس ڈی پی او سانگلہ ننکانہ صاحب اور فخر زمان ایس ڈی پی او بڑا گھر ننکانہ صاحب تعینات کیا گیا۔
طارق जमील SDPO सफ्तर आबाद शेखोपुरा तैनात किया गया है। साजिद महमूद सुहेल SDPO जड़ावाला फैसलाबाद दीगर DSPs को मुख्तलिफ सर्कल्स और यूनिट्स में तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं तकर्रो तबादलों के हवाले से, जहां पर IG पंजाब ने 14 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं, जिसमें मोहम्मद साकिब शामिल हैं, तारिक महमूद शामिल हैं और साजिद अली को DSP शकरगढ़ नारोवाल तैनात किया गया है। कंट्रास्ट इंजेक्शन गायब, MRI CT स्कैन वाले मरीज ख्वार हो गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में टेस्ट के लिए मरीज महंगा इंजेक्शन खुद खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब में इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी ने मुफ्त इलाज के दावों की किली खोल दी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों से कंट्रास्ट इंजेक्शन गायब, MRI और CT स्कैन के लिए आने वाले ख्वार हो गए। कंट्रास्ट इंजेक्शन न मिलने से मरीजों की जान पर बन आई। टेस्ट के लिए बाजार से महंगा इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर। क्या मुफ्त इलाज सिर्फ बोर्ड्स तक महदूद है? सरकारी टीचिंग अस्पतालों में MRI और CT स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों से टेस्ट के लिए मरीज महंगा कंट्रास्ट इंजेक्शन खुद खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में रोजाना दर्जनों मरीज कंट्रास्ट इंजेक्शन न मिलने से MRI और CT स्कैन टेस्ट न होने पर परेशान हैं। सरकारी टीचिंग अस्पताल तशखीसी टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन मरीजों से बाजार से मंगवा रहे हैं। इंजेक्शन खरीदने की सकत न रखने वाले गरीब मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी ने हुकूमत के मुफ्त इलाज के दावों की किली खोल दी। दूसरी जानिब शहर में 2 नंबर अद्वियात का धंधा बरकरार है। एंटीबायोटिक दवा एजोमैक्स का बैच भी जाली करार। टेस्टिंग लैब में 500 मिलीग्राम का बैच जाली पाया गया। शहर में 2 नंबर अद्वियात का धंधा बरकरार, एंटीबायोटिक दवा एजोमैक्स का बैच भी जाली करार दे दिया गया। टेस्टिंग लैब में 500 मिलीग्राम का बैच जाली पाया गया। दवासाज कंपनी को मार्केट से स्टॉक फौरी उठाने की हिदायत जारी कर दी गई। ड्रग टेस्टिंग लैब के तज्जिये में एजोमैक्स 500 मिलीग्राम का बैच जाली पाया गया। महकमा सेहत ने एजोमैक्स टैबलेट का बैच जाली होने पर अलर्ट जारी कर दिया। दवासाज कंपनी को मार्केट से मज़कूरा बैच का स्टॉक फौरी वापस उठाने की हिदायत जारी कर दी गई और तमाम फील्ड ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी एजोमैक्स के जाली बैच की फरोख्त रुकवाने की हिदायत भी जारी की गई है। दरबार बीबी पाक दामन के कैश में गबन, साबिक मैनेजर जाहिद इकबाल की 5 साला मुलाजमत जब्त, 53,86,000 रिकवरी की सजा सुनाई गई। साबिक सीनियर क्लर्क इम्तियाज के 3 सालाना तरक्कियां रोक दी गईं। साबिक गेट कीपर मोहसन शाह और निगरान जफर इकबाल पर कैश हैंडलिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेर इंतजाम दरबार बीबी पाक दामन पर कैश में गाबन की इंक्वायरी मुकम्मल कर दी गई। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने अफसरान और मुलाजमिन को लाखों रुपए की रिकवरी की सजाएं सुना दी। सेक्रेटरी औकाफ ने बहसियत मजाज अथॉरिटी पीडा एक्ट 2006 के तहत हतमी फैसला जारी किया। फैसले में साबिक मैनेजर जाहिद इकबाल की 5 साला मुलाजमत की जब्त करके 53 लाख रुपए की रिकवरी की सजा सुनाई गई। साबिक सीनियर क्लर्क इम्तियाज हुसैन की 3 साल के लिए सालाना तरक्कियां रोकने की सजा दी गई। साबिक गेट कीपर मोहसन और साबिक निगरान जफर इकबाल पर कैश हैंडलिंग पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी गई है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा के मुताबिक नजरानों में खयानत अवामी एतमाद की संगीन खिलाफवर्जी है। इससे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। कम आमदनी वाला तबका आटे की कीमत में कमी का मुंतज़िर है। रवां सीजन सरकारी आटा 800 रुपये मन महंगा हो चुका, जबकि सरकारी आटे का 20 किलो थैला 2200 में फरोख्त होने लगा। 10 किलो थैले की कीमत 1100 रुपये मुकर्रर की गई है। शहर में LPG की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा 308 रुपए फी किलो के सरकारी निरखों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में LPG मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त हो रही है, जबकि कई मकामात पर कीमत 440 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि घरों में गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस वो महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत सरकारी निरखों पर LPG की फराहमी यकीनी बनाए और नाजायज मुनाफाखोरी का खात्मा करे। LPG की कीमतें बहुत उरूज पे जा रही हैं। घरों में सुई गैस नहीं है, होटलों में गैस नहीं है। अब तमाम लोग जो हैं इसकी LPG के लिए दुकान में जा रहे हैं। LPG दुकान में जाते हैं, सरकारी रकम 380 रुपये है तो कोई 450 मिल रही है, कोई 500 मिल रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। LPG गैस बाकी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। आवाम की पहुँच से वैसे ही बहुत ज़्यादा ना वो महंगी हो गई है। पहले 200-300 बड़ी मुश्किल चलो बढ़ा लेते थे, अब तो कहीं 500, कहीं 450 रेट का पता नहीं चलता। आज 450, कल 500 होते, 520 तक गया रेट इसका, जो आवाम की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है।
दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां करती रही, बड़े डीलर्स के खिलाफ मौसर इकदामात नहीं किए जाते। डीलर्स का कहना है कि जब तक LPG की सप्लाई तलब के मुताबिक नहीं होगी, कीमतों में इस्तेकाम मुमकिन नहीं। कैमरामैन आगा ज़ैन के साथ हसन अली तहत हजारों स्कूलों को ईद उल अजहा पर 3 माह का मुआवजा अदा नहीं किया गया। 4300 लाइसेंसेस और 20,000 असातिज़ा फाका कशी पर मजबूर हो गए। लाइसेंसी स्कूलों को अप्रैल, मई और जून की अदायगियां नहीं की गईं। बीमा के मातहत हजारों स्कूल्स ईद उल अजहा पर 3 माह के मुआवजों से महरूम रहे, ताहाल पेमेंट की अदायगी का कोई इम्कान नहीं। मुस्तकिल CEO और डायरेक्टर फाइनेंस होने के बावजूद 4300 लाइसेंसेस और 20,000 असातिज़ा फाका कशी पर मजबूर हैं। बीमा की जानिब से लाइसेंसी स्कूलों को अभी तक अप्रैल, मई और जून की अदायगियां नहीं की जा सकी। मुआवजों की अदायगियां न होने से 4300 लाइसेंसी स्कूल शदीद माली बहरान का शिकार हैं। 3 माह का मुआवजा न मिलने के बाद 20,000 असातिज़ा स्कूल इंतजामिया को भी संगीन माली मुश्किलात का सामना है। बीमा हुकाम का कहना है कि SOPs के खिलाफ वर्जी पर चंद लाइसेंसी स्कूलों के अप्रैल के मुआवजा जात अदा नहीं हुए। मई और जून के मुआवजे इसी माह अदा हो जाएंगे। ट्रैफिक वार्डन्स खुद ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पैदा करने लगे। पैच वर्क सड़क में गाड़ियां रोककर चालान करने पर IG पंजाब बरहम। वार्डन्स नाके लगाकर चालान करने पर फोकस करते हैं। IG पंजाब की जानिब से कहा गया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने CTOs को हिदायत जारी कर दी हैं। IG पंजाब ने बीच सड़क गाड़ियां रोककर चालान करने से मना कर दिया है। सर्कल अफसरान और सेक्टर इंचार्जेस को ट्रैफिक वार्डन्स को ब्रीफिंग देने का हुक्म जारी। आइंदा ऐसी प्रैक्टिस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। IG पंजाब की जानिब से कहा गया, नाके लगाकर चालान करने के बजाय ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाया जाए। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ख़ासूसी शिरकत। राना सिकंदर हयात कहते हैं कि सूबा पंजाब में 2 मरहलों में 300 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद फरीद ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस मंसूबे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पहले मरहले में सूबे भर में 128 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम किए जाएंगे, जिनमें अब तक 76,951 तलबा का इंदराज मुकम्मल हो चुका है। तमाम स्कूलों में मुफ्त किताबें और सिंगल नेशनल करिकुलम का मुकम्मल नफाज लाजमी होगा। चेयरमैन पैफ मलक शुएब ऐवान ने बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस का मकसद बच्चों को आलमी मियार की जदीद और मियारी तालीम की फराहमी है। प्राइवेट सेक्टर में और हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें एक फ़र्क नज़र आ रहा था। लोग जो अफोर्ड करते थे वो अपने बच्चों को हमेशा प्राइवेट सेक्टर में लेके जाते थे, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें सिर्फ वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते थे उनके बच्चे होते थे। नंबर वो भी लेते हैं, पोजीशंस लेते हैं बोर्ड में, लेकिन इस माहौल में जो कि हक बनता है मेरे बच्चे का भी और मेरे ड्राइवर के बच्चे का भी, वो इंशाल्लाह इन स्कूलों में पढ़ेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में साइंस लैब्स, रोबोटिक्स लैब्स, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम्स, ECE रूम्स और खेल के वसी मैदान बनाए गए हैं। इन सहूलियात का मकसद तलबा की तख्लीकी, साइंसी और तकनीकी सलाहियतों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़रोग देना है। राना सिकंदर हयात ने मज़ीद बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में वो तालीमी माहौल फराहम करेंगे जिससे हमारे तलबा आलमी सतह पर मुकाबला कर सकेंगे। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दुनिया में ये ग्लोबल मॉडल्स हैं, हमें इस चीज़ पे आना है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और प्राइमरी के अंदर बच्चे पे मैक्सिमम स्पेंडिंग होनी चाहिए बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। 1, नेचुरल ग्रोथ, बच्चे की फिजिक, दिमाग, उसकी ग्रोथ मैक्सिमम उस टाइम पे। सर ने कहा कि 7वीं 8वीं में आ गया तो फिर बस वहीं पे है, उसके बाद मेहनत है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमने 30 बिल्कुल नहीं कहा, हमने 25 कहा है, बट अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहते हैं, आप मिसाल बने, आप 20 से शुरू करें। दाखिले के लिए फेज 1 के लिए जून के तीसरे हफ्ते, जबकि फेज 2 के लिए जुलाई के तीसरे हफ्ते में टेस्ट लिया जाएगा। कैमरामैन आगा जैन के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासात मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें मुकम्मल होने वाली और ज़ेर तामीर शाहराहों की पेशरफ्त और मयार का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, चीफ इंजीनियर समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास को लोकल रोड प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाली शाहराहों और जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मलिक सोहेब अहमद भरत ने हिदायत जारी की कि सूबा भर में प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाली और ज़ेर तामीर तमाम शाहराहों के मयार और क्वालिटी को सख्ती से चेकिंग किया जाए। और सूबाई वज़ीर ने कहा कि मनसूबों की थर्ड पार्टी चेकिंग भी करवाई जाएगी, जबकि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल या मयार में किसी किस्म के खराबी की निशानदही होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जदीद खतूत पर इस्तवार 100 मोटरसाइकिल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड बनाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कड़ी निगरानी और शिकायत का बरवक्त तदारुक वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। सुबह भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मौजूदा फ़आलियत और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करते हुए 100 मोटरसाइकिल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर हाउसिंग ने पानी के मयार की जांच के लिए लेबॉर्टरी टेस्टिंग के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत जारी की। बिलाल यासिन ने कहा कि आवाम को साफ पानी की फराहमी उनका बुनियादी हक है, जिसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में साफ पानी अथॉरिटी के आइंदा हिकमत अमली और तोसी मनसूबे पर भी गौर किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शफी हुसैन से वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स इनकॉर्पोरेटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राना मोहम्मद तनवीर की मुलाकात हुई। कैनेडा गेट अवे एक्सपो और लाइफस्टाइल एक्सपो बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत की शराकत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और कैनेडा के दरमियान दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन पर बातचीत हुई। गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग, कारोबारी रवाबत के इस्तेहकाम और नए इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। चौधरी शफी हुसैन ने कहा कि पंजाब हुकूमत का वज़ारती और तजारती वफ़द 22-23 अगस्त को कैनेडा गेटवे एक्सपो और लाइफस्टाइल एक्सपो बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करेगा। सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत मोहम्मद मंशौला भट्ट का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा मंडी का दौरा, तिब्बी सहूलियात, अद्वियात के फ्राहमी और इंतजामिया अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर एमएस सोशल सिक्योरिटी अस्पताल डॉक्टर हुमैरा बुज़दार ने सूबाई वज़ीर को अस्पताल की मजमूई कारकर्दगी, फराहम करदा तिब्बी सहूलियात और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अस्पताल में 1500 से ज़ायद सनती यूनिट्स के वर्कर्स को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर लेबर ने मेडिसिन स्टोर, लेबॉर्ट्री और दीगर अहम शोबाजात का भी दौरा किया और तमाम ज़रूरी अद्वियात की 24 घंटे दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के अमल का खुद जायजा लिया और अस्पताल इंतजामिया को हिदायत जारी की कि मेहनत कशों और उनके अहले खाना को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुशीर वज़ीर आला पंजाब राय AI और ख़ासूस इक़दामात अलीडार से XI टीम ने मुलाकात की है, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान पंजाब के तालीमी निज़ाम में मुकामी सतह पर तैयार करदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के इंज़माम और मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद तालीमी निज़ाम के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अली डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान के तहत पंजाब को मसनूई ज़हानत से फ़आल और इल्म पर मबनी मईशत की जानिब गामज़न किया जा रहा है। पंजाब के तलबा को आलमी मयार की AI पर मबनी तालीमी सहूलियत फराहम की जाएंगी ताकि वो जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग हो सकें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में माली बेज़ाब्तियों कवायद की खिलाफ वर्जियां, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने सख्त नोटिस ले लिया। कमेटी के इजलास में जायदादों के खरीदो फरोख्त, टैक्स वसूलियां, मोटिवेशन फीस और आर्जी काश्तकारी स्कीम के तहत प्लॉट्स के अलाटमेंट से मुतालिक अहम मामलात का जायजा लिया गया। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिक मुख्तलिफ ऑडिट पेराज का तफसीली जायजा लिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में नॉन बैंकिंग चैनल्स के जरिए जायदाद खरीदारी पर जुर्मानों की अदम वसूली का इंकशाफ सामने आया, जबकि गैर मनकुला जायदाद के खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स वसूल न होने पर कमेटी ने सख्त एतराज़ात उठाए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जायदाद मुंतकली के दौरान फरोख्त कुनिंदगान से कम या अदम विद होल्डिंग टैक्स वसूली से कौमी खजाने को माली नुकसान पहुंचाया गया है। सादे डेंगू इक़दामात का जायजा इजलास, ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर डिवीजन में डेंगू वायरस से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। लाहौर में 6 मुस्बत केसेस, 18,000 से ज़ायद लार्वा तल्फ किया गया है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के बयान के मुताबिक सेहत आमा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरीम खान की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू डिवीजनल इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें लाहौर, ननकाना साहब, कसूर और शेखुपुरा में डेंगू सर्वेलेंस और डेंगू यूजर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। इजलास में बताया गया कि चारों अजला में डेंगू सर्वेलेंस 100% जारी है और टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। ब्रीफिंग के मुताबिक लाहौर में रवां साल अब तक 18,030 डेंगू लार्वा तल्फ किए जा चुके हैं, जबकि 6 मुस्बत और 3,036 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने बताया कि डेंगू सर्वेलेंस के दौरान 18,011 वार्निंग नोटिस जारी और 19 मुकदमा दर्ज किए गए।
ڈگے، جبکہ لاہور ڈویژن میں ڈنگی وائرس سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ اچھرا بازار کو ایک نئی شکل کے ساتھ بحال کر دیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا ڈی سی لاہور علی اعجاز کے ہمراہ اچھرا بازار کا دورہ، فنشنگ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایل ڈی اور ایم سی ایل کی ٹیموں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اچھرا بازار کی تزئین و آرائش اور ترقیاتی کام 98% مکمل کر لیا گیا ہے۔ فنشنگ ورک آئندہ چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق نے بتایا کہ اچھرا بازار کو ایک نئی شکل کے ساتھ بحال کیا گیا ہے۔ اچھرا بازار کو پیدل چلنے والوں اور شاپنگ کرنے والوں کے لیے محفوظ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھرا بازار میں لٹکتی تاروں کا خاتمہ، دیدہ زیب ٹف ٹائلز، دکانوں کا فساد بہتر بنا دیا گیا ہے۔ اچھرا بازار میں داخلی دروازے اور خواتین کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ واش رومز تعمیر کیے گئے ہیں۔ ایل ڈی نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ماڈل پر اچھرا بازار کی ری ماڈلنگ کی ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اعجاز نے کہا کہ موٹر سائیکل پولیس کا نیٹ ورک ہماری صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈی آئی جی موٹر وے سینٹرل 1 عمران شاہد کی فیڈریشن چیمبر آمد، ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبر ذکی اعجاز اور دیگر کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ موٹر وے پر اشیاء تجارت کی گاڑیوں کے مالکان کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ سیالکوٹ ایکسپورٹرز کے وفد نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا اور صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات کی۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، نائب صدر خرم لودھی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ سیالکوٹ پاکستان کی برآمدات اور ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود ایکسپورٹ سیکٹر ملکی معیشت کو سہارا دے رہا ہے۔ برآمدی صنعت کے مسائل کے حل اور اس کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وفد نے حکومت پر زور دیا کہ ایس ایم ای سیکٹر کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں، کیونکہ چین، ویتنام اور بھارت سمیت کئی ممالک نے اسی شعبے کی سرپرستی کے ذریعے اپنی برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا۔ ملاقات میں کہا گیا کہ ایس ایم ای سیکٹر کی معاونت سے جدت، روزگار اور برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔ علی انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن میں دی لیڈر لائسم کی تیسری سالانہ تقریب تقسیم انعامات زینت پروگرام کے عنوان سے منعقد کی گئی، جس میں مختلف اہم شخصیات نے شرکت کی۔ لیڈر لائسم اسکول کی تیسری سالانہ تقریب تقسیم انعامات ہوئی۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رانا نعیم سرور، ڈاکٹر نجمہ افضل خان، سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن محمد اسد منظور بٹ، کنوینئر اسٹینڈنگ کمیٹی پنجاب میاں غلام مصطفیٰ، الخدمت فاؤنڈیشن کے حماد اختر، سپیریئر گروپ آف کالجز کے ریجنل ڈائریکٹر چودھری یوسف نے شرکت کی۔ سی ای او فرینڈز انوائرمنٹ راجہ آصف، سی ای او لیڈر اکیڈیمیا ایڈوکیٹ محمد یونس، مینیجنگ ڈائریکٹر دی لیڈر لائسم عائشہ یونس اور محمد اصغر بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں پریپ گروپ سے گریڈ 7 تک کے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ بچوں نے انگریزی، اردو، چائنیز اور عربی زبانوں میں تقاریر پیش کی، جنہیں شرکاء نے خوب سراہا۔ یہ جو ایونٹ ہے یہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے کہ سوسائٹی میں اتنی ایجوکیشن سے زیادہ اور بچوں کی گرومنگ سے زیادہ کوئی بڑا فریضہ نہیں ہو سکتا، جو کہ بڑی خوبصورتی سے ادا کیا جا رہا ہے۔ محمد یونس صاحب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ بڑا اچھا زبردست پروگرام تھا۔ بچوں نے اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو تھی بڑے اچھے ٹیبلوز وغیرہ پیش کیے، تقاریر کی اور خوبصورت پروگرامز انہوں نے یہاں پر شو کیا، تو زبردست تھا۔ اور اس کے علاوہ میں کیونکہ صوبائی محتسب پنجاب ہوں، ابھی مجھے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تعینات کیا ہے، تو میں نے اسکول کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں بات کی، اور اس کے علاوہ جو یہ خدمات دے رہے ہیں پورے علاقے میں، اس کی میں نے خراج تحسین پیش کیا۔ بچوں کی جانب سے پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیبلوز اور رنگا رنگ پرفارمنسز بھی پیش کی گئیں۔ میں نے ہوسٹنگ بھی کیا اور ساتھ ساتھ میں نے ایک پرفارمنس بھی کی ہے، تو مجھے مزہ آیا، ریوارڈ بھی ملا مجھے کافی اچھا ایونٹ لگا۔ میری پرفارمنس تھی، میں اردو کی پرفارمنس میں بھی تھا، شکوہ تھا میرا۔ تقریب کا مقصد طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42۔
अब यहाँ पर आपको बताएं, कभी गर्मियों में घरों की जरूरत समझे जाने वाले हाथ के पंखे आज अपनी अहमियत खो चुके हैं। जदीद दौर में ये सिर्फ सजावट तक महदूद होकर रह गए हैं। वक्त के साथ जहां टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, वहीं पुराने हुनर भी मुतासिर हुए। हाथ से बनने वाले रिवायती पंखे जो कभी हर घर की जरूरत थे, अब मार्केट से तकरीबन गायब हो चुके हैं और सिर्फ सजावट के तौर पर बाकी हैं। दुकानदार ने हाथ पंखे की तारीख बयान की। हम एक पंखा बनाते हैं, पतंग बनाते हैं, गुड्डा बनाते हैं, सराई बनाते हैं और दूसरे वगैरह डेकोरेशन पीस बनाते हैं। इससे ये कि पूरी दुनिया से लोग टूरिस्ट वगैरह हमारे पास आते हैं, लोकल पाकिस्तान से भी आते हैं, पंजाब से, लाहौर से, ये लोग लेके जाते हैं घरों में। नया घर बनाया, उसमें डेकोरेशन पीस लगा लिया, वहाँ के लिए भी इस्तेमाल कर लिया। ये हाथ से बनाई हुई चीज़ है। दुकानदारों के मुताबिक जदीद सहूलियात ने रिवायती अशिया को पसे मंजर में धकेल दिया है। हम बचपन में सुनते थे हिम्मत फैन ले, वो भी हाथ ना चलाना लपका। तो अब ना तो लोगों में हिम्मत है ख़रीदने की और ना ही इसको फिजिकली इस्तेमाल करने की। तो इससे काफ़ी जो है कारोबार के ऊपर भी बड़े ही बुरे असरात पड़ रहे हैं। इसमें हम जो है वो काफ़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अब हमें तो और कोई काम आता नहीं है इसके मुतबादिल। शहरियों ने कहा, इस जदीद दौर में हाथ पंखा इस्तेमाल किए हुए अरसा हो गया है। हाथ पंखे का दौर चला गया है। अब एसी का और ये दूसरे रूम कूलर का और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। अब इनका दौर चला गया है। अब इनको कोई कोई वैल्यू नहीं है इनकी, अब कोई नहीं लेता। आज के दौर में हाथ वाला पंखा कोई भी नहीं यूज़ करता। जैसे एसी हो गया, पंखे वगैरह हो गए, एसी कूलर हो गए, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं आते लेने? नहीं, कोई चीज़ नहीं लेने आ रही। हाथ के पंखे ना सिर्फ एक जरूरत थे, बल्कि हमारी सकाफत और हुनर का खूबसूरत अक्स भी थे। बदलते दौर के साथ इन हाथ पंखों की जगह ले ली टेक्नोलॉजी ने, मगर आज भी अंदरून लाहौर के अंदर बैठे हुए ये कारीगर इस फन को, इस माजी की याद को जिंदा रखे हुए इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हुकूमत पंजाब इनके ऊपर नजर सानी करे और इनके हालात कुछ हद तक बेहतर हो सकें। कैमरामैन मुबीन मजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।